तो हेलो गाइस, वेलकम टू जावा जेसम। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज वेरिएबल्स इन जावा। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि जब भी आप कोड लिखोगे तो डेफिनेटली यू हैव टू राइट इन वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स का काम होता है आपको डेटा को स्टोर करके रखना। सो इसमें होता क्या है कि वेरिएबल इज ए नेम्ड स्टोरेज लोकेशन। सो फॉर एग्जांपल कि आप कोई वेरिएबल बनाएं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे int type. So if you created the any variables with the int type which is x equal to 10, okay, so that is called a one variable which is x. So x is a variable, the type of x is integer and x having a value called 10. So here you can see a variables a variables is a name. So this is the name. So a variable is a name, storage location. This is the storage location name. So a variable is name storage location in a memory. So this is the name of those particular memory locations that can hold a value of a specific data types. The value of the specific data types. So एक क्या होल्ड करके रखा हुआ है? 10, जिसका स्पेसिफिक डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। वेरिएबल इन जावा कैन बी क्लासिफाइड इनटू द टू मेन कैटेगरीज। सो कैटेगरी क्या है वो? प्रिमिटिव वेरिएबल्स एंड रेफरेंस वेरिएबल्स। जैसे हमने दो टाइप्स का डेटा टाइप सीखा था, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड रेफरेंस डेटा टाइप्स, उसी तरीके से इसको भी हम बोल सकते हैं प्रिमिटिव वेरिएबल्स एंड रेफरेंस वेरिएबल्स। ओके, एक और आता है लोकल वेरिएबल्स। सो उसको हम लोग बाद में लिखेंगे, जो कि मेथड पढ़ते समय पे हम लोग उसको टच करेंगे, जिसको बोलते हैं, अब देखो, प्रिमिटिव वेरिएबल्स और रेफरेंस वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल्स, ऐसे बहुत सारे कैटेगरी हैं। बट राइट नाउ वी हैव टू फोकस द टू कैटेगरी विच इज वेरिएबल्स इज primitive variables and reference variables. So what is the primitive variables? Primitive variables hold the simple values such as a integer, floating point numbers, characters, booleans value. There are 8 primitive data types in the Java, which is byte, short, int, float, double, char and boolean. You already know about it, I think. Okay, so पिछले वीडियो में आपने रिमेंबर किया होगा इसके बाइट, शॉर्ट, इंट, जो कि 8 डेटा टाइप्स हैं। ओके, किस टाइप के वैल्यू को स्टोर करते हैं वो लोग, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव वेरिएबल्स। ओके, नाउ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स इज हाउ यू कैन रीड दिस लाइन। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इस लाइन को रीड करना है तो आप जावा में इसे कैसे रीड करोगे? इसको बोल सकते हो int x equal to 10 सिंपली। बट इफ यू वांट टू से इन सम वर्ड, सो हाउ यू कैन से? यू कैन से declaring an integer variable which is x. So declaring an integer variable x and initializing it with the value of 10. So we have initialized this value x with the 10. So we can say declaring an integer variable x and initializing it with the value of 10. So देखो, एक लाइक एज ए फॉर्मेट में कहना है, जैसे कि int x इक्वल टू 10 तो आप कह सकते हो सिंपली, कोई भी कह सकता है। लेकिन एज ए प्रोग्रामर यू नीड टू अंडरस्टूड हाउ यू कैन प्रोनाउंस टेक्निकली। सो टेक्निकली यू कैन से डिक्लेयरिंग एन इंटीजर वेरिएबल x एंड इनिशियलाइजिंग इट विथ वैल्यू ऑफ द 10। उसी तरह से डबल y, कैरेक्टर c, बुलियन b इक्वल टू ट्रू। सो डिक्लेयरिंग ए बुलियन वेरिएबल b and initializing it with the value of true. So इस तरह से आप pronounce कर सकते हो। नेक्स्ट आप देखोगे तो यहाँ पे reference variable. So reference variables hold the memory address of an object rather than the object itself. So reference variables are the used to manipulate object in Java, such as a calling method on object accessing its properties. Reference variables are the declared using a class. So reference variables means reference data types which is class. For example, string. So string is a class, it's a store the hello value. So एक बार इसे आप रीड करो और इसे समझने की कोशिश करो। जैसे कि स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर,
So declaring a reference variable scanner of the type scanner and initializing it with the new scanner object that reads from the console value. Okay, variables in Java can be have a different scope which determined where the variables can be accessed. A variable scope is defined by where the declare in the code. ओके, सो इसका डिफरेंट एक्सेस स्कोप होते हैं, जहाँ पे कहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो, कहाँ पे नहीं कर सकते हो. अगर हम बात करें लिटरल का, सो लिटरल भी एक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है. सो बहुत सारे लोग इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज लिटरल इन जावा. सो लिटरल इज ए नथिंग बट इट्स ए समथिंग वर्ड विच इज प्री डिफाइंड और रिजर्व वैल्यू यू कैन से. Okay, so in Java literal is a notation of representing a fixed value. ये क्या होता है? Fixed value in the source code. It is the direct value that is the specified in the code and does not need to the calculate the or evaluate it. So जो कंपाइलर है इसको कैलकुलेट और इवेल्युएट नहीं करता है, डायरेक्ट क्या करता है, इस पे ऑपरेशन करना परफॉर्म कर देता है और इससे वर्क करना शुरू कर देता है. वो जानता है कि हाँ इस वैल्यू का इतना ही मतलब है. So literals are the used to represent a various type of the values such as numbers, characters and boolean. So इस टाइप के वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसके थ्रू, लिटरल के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द कॉमन लिटरल्स यू कैन सी हियर. इंटीजर के लिए 123 -45 इस तरह से लिटरल्स हो गया. फ्लोटिंग पॉइंट के लिए 3.14 जो कि कांस्टेंट वैल्यू होता है पाई PI. बुलियन लिटरल्स ट्रू फॉल्स. कैरेक्टर लिटरल्स सिंगल कोट A. उसी तरह से स्ट्रिंग लिटरल्स हेलो वर्ल्ड जावाइजेशन. लिटरल्स आर द यूज्ड टू कंटिन्यूअसली इन द जावा प्रोग्रामिंग टू असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल्स, इनिशियलाइज एन एरे और मेथड्स एनीथिंग. ओके, सो लिटरल्स का मतलब होता है कि जब भी मान लो कि पाई, जब आप मैथ पढ़ते तो क्या करते थे, पाई का एक फिक्स वैल्यू होता है. जो फिक्स का वैल्यू क्या होता है 3.14 मैथ डॉट पाई. सो जावा के अंदर एक मैथ क्लास है जिसके अंदर एक वेरिएबल होगा पाई जिसका एक फिक्स वैल्यू होगा 3.14. उसको बोल सकते हैं लिटरल कांस्टेंट इन जावा. ओके, उसी तरीके से 123 एक लिटरल्स कांस्टेंट है इंटीजर के लिए. उसी तरह से बुलियन के लिए ट्रू एंड फॉल्स. सो इसको इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कंपाइलर समझ जाएगा कि हाँ इसका वैल्यू क्या होना चाहिए. ओके, उसी तरह से वेरिएबल्स इन द जावा, आप वेरिएबल्स का डेफिनेशन सिंपली बता सकते हो कि वेरिएबल्स इज नथिंग बट इट्स ए नेम्ड स्टोरेज लोकेशन इन द मेमोरी दैट कैन होल्ड द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक डेटा टाइप दैट इज कॉल्ड वेरिएबल्स. दो टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव वेरिएबल्स, रेफरेंस वेरिएबल्स. उसके अलावा बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो हम लोग बात करेंगे इन डेप्थ में आगे चल करके. ओके, ये सारे डिक्लेरेशन है. इंट x इक्वल टू 10, डबल y इक्वल टू 3.14. इसको एक बार चेक कर लो, समझ लो कैसे कैसे लिखा गया है, सारी चीज़ एक बार. उसके बाद रेफरेंस वेरिएबल्स जो आप ऑलरेडी जानते हो, व्हाट इज द क्लास. सो क्लास इज रेफरेंस वेरिएबल्स एंड क्लास के अंदर जो भी डेटा आप स्टोर करोगे और उसे सेंड करोगे कहीं दूसरे मेथड के पास, तो उसको बोल सकते हैं रेफरेंस वेरिएबल स्टोरेज और रेफरेंस वेरिएबल्स. ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें, सो जब आप यहाँ पे देखोगे, ओके, सो फॉर एग्जांपल हमने लिखा है यहाँ पे एक सिंपल सा वैल्यू. चलिए पेंट में चलते हैं. ओके, पेंट में चलते हैं और यहाँ पे हम लोग वेरिएबल बनाते हैं. int a equal to 10. So this is one variables which is declared and initialized with the 10. Okay, it's a integer type. So इसको कैसे मेमोरी लोकेशन मिलता है, तो मान लो कि ये हमारा एक क्या है, कंप्यूटर है. ये क्या है, एक हमारा कंप्यूटर है. ये क्या है, एक हमारा कंप्यूटर है. इस लैपटॉप में या कंप्यूटर में आप जूम कर लो, एक मेमोरी सेक्शन होगा. क्या होगा, एक मेमोरी सेक्शन होगा जिसको हम लोग बोल सकते हैं कोई भी मेमोरी. जिसको हम लोग बोल सकते हैं कोई भी मेमोरी.
MEMORY, मेमोरी या हार्ड डिस्क या रजिस्टर या आप इसे कंज्यूम कर सकते हो लाइक मेमोरी। सो ये सभी क्या है कि मेमोरी है। एक मेमोरी है। ओके। सो जब भी आप एक वेरिएबल बनाओगे तो मेमोरी में बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो इस मेमोरी के अंदर एक पार्ट है, मान लो रैम। क्या है? एक रैम है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? रैम। सो मान लो एक पार्ट है रैम, सो जिसका नाम हम देते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। इस रैम के अंदर जैसा ही आप लिखोगे int a = 10, जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है JDK, वो क्या करेगा? किसका यूज करेगा? इसी रैम को यूज करेगा, हमारे सिस्टम के रैम को यूज करेगा, और यहाँ पे इस रैम में एक वेरिएबल बना देगा। क्या बना देगा? एक वेरिएबल बना देगा। उस वेरिएबल का नाम क्या रहेगा? उस वेरिएबल का नाम रहेगा a। उस वेरिएबल का नाम क्या रहेगा? a। और उस वेरिएबल के लिए एक ब्लॉक रिजर्व कर देगा, और उस ब्लॉक को रिजर्व करके उस ब्लॉक के अंदर 10 डाल देगा। कितना डालेगा? 10। ठीक है। सो आपको दिख रहा होगा 10 यहाँ पे डल गया है। अदरवाइज अगर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे हम डाल देते हैं फिर से 1010। सो इसमें क्या डल गया? 10। इसका कुछ एड्रेस होगा। ओके, इसका कुछ एड्रेस होगा। सो मान लो इसका एड्रेस हो गया 1 2 3 1 2 3 4 समथिंग एड्रेस होता है। हर एक मेमोरी लोकेशन में क्या होता है? एड्रेस होता है। सो इस एड्रेस को यहाँ पे स्टोर कर दिया। लेकिन अब होगा क्या एग्जैक्टली? जब JVM देखेगा तो JVM क्या करेगा? JVM इसको सिंपली यहाँ पे वो अपने तरफ से एक a वेरिएबल बनाया है, जो हम लोग को दिख रहा है कि a नाम का एक वेरिएबल्स है, और इस वेरिएबल्स इस पॉइंट कर रहा है इसको, और इसके अंदर क्या रहेगा? एड्रेस रहेगा उस पार्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का, जिसका नाम है 1 2 3 4। ओके। और इंटरनली जब भी इसे रिक्वायर्ड पड़ेगा हमारे JVM को, जिसे बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन, JVM, इसको क्या बोलेंगे? JVM, जावा वर्चुअल मशीन, जो JDK के अंदर है। JVM वो क्या करेगा? इस वैल्यू को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, और लेकिन हमारे एक्चुअल सिस्टम में ऐसे स्टोर हुआ है डेटा। तो ये क्या करेगा? इस एड्रेस को डायरेक्टली फेच कर लेगा यहाँ से। सो जब भी रिक्वायर्ड पड़ेगा इसको कॉल करेगा, और इस वैल्यू से यहाँ से 10 को पिकअप करके यहाँ पे ला करके, और इसको यहाँ से जो भी रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे यूज कर लेगा। जहाँ पर भी उसको यूज पड़ेगा वहाँ पे यूज कर लेगा। ओके, जहाँ पर भी इसको रिक्वायर्ड होगा वहाँ से क्या करेगा? यूज कर लेगा अपना। सो चारों तरह से यूज कर लेता है जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ता है। तो इस तरीके से एक वेरिएबल को स्टोर किया जाता है अपने सिस्टम की मेमोरी में। हम लोग आगे चल करके और भी बहुत सारे डायग्राम देखने वाले हैं, और कैसे रियल टाइम में वर्क करते हैं सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे और कंफर्म करेंगे, और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, और सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ अभी तक हमने जो कवर किया डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड लिटरल्स, इन सब का डेफिनीसन, विथ डेफिनीसन यू हैव
सम एग्जाम्पल, उसके अंदर जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, रेफरेंस डेटा टाइप्स, जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में जो भी डेटा टाइप्स हैं उनको कैसे स्टोर करते हैं, उनको कैसे और क्या क्या है उनको सबको याद रखना है आपको। रेफरेंस डेटा टाइप्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसको आपको याद रखना है। कुछ लिटरल्स और उसका एग्जाम्पल याद रखना है। डेट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।